آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، ہم صلیب کے پیغام کو، گڈ فرائیڈے کا جو میسیج ہے اس کو آج بیان کریں گے، اس پر غور و خوض کریں گے۔ گڈ فرائیڈے کا پیغام، کیونکہ مسیحت جو ہے وہ ٹریڈیشن نہیں ہے، مسیحت جو ہے وہ اوپری سطح کا نام نہیں ہے، مسیحت کوئی اوپری کنڈیشن نہیں ہے، یعنی اوپر کی کنڈیشن نہیں ہے، بال بڑھانا یا خاک سر میں ڈالنا یا بڑے بال رکھ کر بڑی داڑھی رکھ لینا یا کچھ بھی کر لینا، یہ مسیحت نہیں ہے۔ مسیحت مسیح یسوع کے ساتھ ریلیشن شپ کا نام ہے اور یسوع مسیح کے حکموں کی تعمیل کرنے کا نام ہے۔ آمین۔ اور جتنا زیادہ ہم مسیح کے حکموں کی تعمیل کرتے جائیں گے اتنا زیادہ ہم اس کے کلام میں بڑھتے جائیں گے، مضبوط ہوتے جائیں گے اور ہمارا لیول بلند ہوتا جائے گا۔ آمین۔ آج ہم گڈ فرائیڈے کا پیغام اس پر غور کریں گے۔ گڈ فرائیڈے کیا گڈ فرائیڈے ہے؟ گڈ فرائیڈے پہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہر سال ایک تقریباً ہم جہاں سے بھی گھما پھرا کر لائیں، میسیج کی جو بیس ہے وہ سیم ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان دنوں میں شام کلوری منائی، شام گتسمنی منائی، اور اس طرح سے یسوع مسیح کے دکھوں کے لیے ایک شام یسوع ناصری کے نام اس طرح سے کہہ کر منایا، گیت گائے، پرستش کی، دعائیں کی، عبادات کی گئی، دکھوں والے گیت گائے گئے، مسیح کے دکھوں کو یاد کیا گیا۔ لیکن جب تک یہ ساری چیزیں فائدہ مند نہیں ہوں گی، جب تک ہماری زندگی میں ہم اس کو اپلائی نہیں کریں گے۔ آج ہم اس چیز پر اسٹڈی کریں گے، ہم دیکھیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک دکھی شخصیت ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس زمین پر جب آئے تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ رنج کا آشنا ہے، وہ رنج کا آشنا ہے۔ اس کے چہرے پہ کوئی خوبصورتی نہیں ہے اور اس کا کوئی حسن جمال نہیں ہے۔ وہ آدمیوں میں حقیر اور مردود اور مرد غمناک، وہ حقیر جانا گیا، اس کو رد کیا گیا، اس کی انسلٹ کی گئی اور اس کی داڑھی کو نوچا گیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اور اس کا کارن، اس کی وجہ صرف اور صرف آپ اور میں اور بنی نوع انسان ہیں۔ آدم کی اور خدا کی اور ہوا اور خدا کی جدائی پیدا ہو گئی تھی، اور جدائی کو دور کرنے کے لیے، اس جدائی کو ختم کرنے کے لیے اور کوئی چیز کارآمد نہیں تھی سوائے خداوند یسوع مسیح کے لہو کی۔ یسوع مسیح کا لہو اگر نہ ہوتا تو ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ بحال نہ ہوتا، لیکن یسوع مسیح کے لہو کی وجہ سے آج ہمارے سر فخر سے بلند ہے۔ اے یروشلم شادماں ہو، پیاری کلیسیا خوشی منا، کیونکہ تیرا کفارہ ہو گیا ہے، یسوع کے خون سے تیرے گناہوں کا فدیہ دے دیا گیا ہے۔ آمین۔ اور خداوند یسوع مسیح گتسمنی کے باغ میں، جان کنی کے عالم میں، دکھ اور مصیبت اور پریشر کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اور وہ گھٹنوں کے بل گر کر دعا کرتے ہیں کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، لیکن تو بھی جیسا میں چاہتا ہوں ویسا نہ ہو، بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہو، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ میں بتاتا ہوں گڈ فرائیڈے کا پیغام یہ ہے کہ اپنی مرضی کرنا چھوڑ دیں اور خدا کی مرضی کو پورا کرنا شروع کریں۔ اپنی مرضی سے یہ ٹریڈیشن نہ بنائیں، اپنی مرضی سے ایسے کام نہ سیٹ کر لیں کہ بس ہمارے بڑے کہتے تھے، ہمیں پتہ ہے جی، ہمارے بڑے کہتے تھے۔ کیوں کرتے ہو جی؟ بس ساڈے بڑے کہتے سن، وڈیاں دی گل مننا چاہیے، ساڈا پیو دادے ڈیک دیندے سن، اسی بھی دینی ہے۔ یہ کوئی آپ کو اس کی کوئی بلیسنگ نہیں ملے گی۔ اگر کچھ ملے گا تو یسوع مسیح راست باز کے خون سے آپ کو ملے گا۔ اور سپاہیوں نے خداوند یسوع مسیح کی کیسی تحقیر کی کہ اس کے سامنے آتے، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھتے اور اس کو کہتے کہ ہمیں نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا۔ جب وہ صلیب پر لٹکایا گیا تو اس کو کہنے لگے تو صلیب سے اگر اتر آئے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ آج بھی مسیحت میں لوگ اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں، وہ صرف معجزے اور نشان دیکھنے اور اپنی لائف میں معجزات کے لیے اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ خدا ان سے رشتہ بنانا چاہتے ہیں، نہ مسیح کے ساتھ کوئی ریلیشن بنانا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ گڈ فرائیڈے کو دکھ کا دن سمجھتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بڑا دکھ ہے، تو آپ اس کی بات کیوں نہیں ماننا شروع کر دیتے؟ اگر آپ اس کا حکم ماننا شروع کر دیں گے، اگر آپ اس کے کلام پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، تو یسوع مسیح سمجھ جائے گا کہ یہ میرے سچے شاگرد ہیں، یہ میرے سچے پیروکار ہیں۔ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے
तुम मेरे मोहब्बत पैगाम है गुड फ्राइडे का। काले कपड़े सफेद कपड़े पैगाम नहीं है। ईस्टर को व्हाइट पहन लेते हैं कि यीशु मसीह जिंदा होता, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फैशन के तौर पर हम पहन सकते हैं, लेकिन पहनना है तो मसीह यीशु को पहन लो। पौलुस कहता है मैं जिंदा ना रहा बल्कि अब मसीह मुझ में जिंदा है। वो गुनाह के एतबार से मर गया और रास्तबाजी के एतबार से वो जिंदा था। और वो फख्र कहता था खुदा ना करे कि मैं सिवाय यीशु मसीह की सलीब के किसी और चीज पर फख्र करूं। आमीन। आज हम अपनी औलाद पे फख्र करते हैं, अपने पैसे पे फख्र करते हैं, अपने रुतबे पे फख्र करते हैं, अपने ग्रेड पे फख्र करते हैं, अपनी एजुकेशन पे फख्र करते हैं। खुदा ना करे, ये पैगाम है गुड फ्राइडे का कि किसी चीज पर हम फख्र ना करें। आमीन। और खुदावंद यीशु मसीह का जब पसीना खून की सूरत में बह रहा था तो यीशु मसीह ने कहा, ए शमौन तू सोता है, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहां तक के मरने की नौबत आ गई। क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? ना दुआ करते हैं, ना बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी हम सबसे अपने आप को अच्छा कहते हैं, फिर भी हम दावा करते हैं कि हम सबसे खुदा के प्यारे बच्चे हैं। कैसे हो सकता है? यीशु मसीह, मैं गुड फ्राइडे का पैगाम आपको देना चाहता हूं। अगर आपको दुख है कि यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके हाथों पांव में 9-9 इंच के कील ठोक दिए गए, आपको दुख है तो दुआ करना शुरू करें। ये इतना स्ट्रॉन्ग कमांडमेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग ये हुक्म है कि जागो और दुआ करो ताकि किस हालत में खुदावंद, उस वक्त तो अगर खुदा न खास्ता हमारी ऐसी हालत हो तो हम तो किसी से बात भी नहीं करेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे। उस दुख में, उस कर्ब में, जब पसीना बदन से निकल रहा है, मसान खुल गए, खून निकल रहा, खून की बूंदें जमीन पे गिर रही हैं, और ने कहा तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? आज 1 घंटा दुआ करने वाले मसीह बहुत कम है, 10 मिनट वाले हैं, 5 मिनट वाले हैं, और ज्यादा तादाद जो करते ही नहीं है। क्या गुड फ्राइडे है? क्या गुड फ्राइडे? इसमें क्या गुड है? गुड फ्राइडे तब गुड है जब आज से आप फैसला कर लें कि आप दुआ करेंगे। कितने लोग आज फैसला करना चाहते हैं कि हम दुआ करेंगे, हर रोज बिना नागा दुआ करेंगे? इसी से अपनी मोहब्बत को नाप लो। किसी ने हाथ नहीं उठाया, उनको पता है कि यार कह के फंसने वाली बात है, कहने से खुदा गला नहीं दबा देगा, लेकिन इरादा तो करें आप। अगर वो चाहते हैं तो मैं आज दुआ करके आपको रुखसत करूंगा और खुदा आपके दिल में ये बात डालेगा, आप दुआ करने वाले बन जाएंगे। कितने चाहते हैं कि वो दुआ करेंगे? मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जागो और ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मैसेज दिया, गुड फ्राइडे का मैसेज ये है। और खुदावंद यीशु मसीह को कोड़े मारे, दाढ़ी नोची, मुंह पर तमाचे मारे, और उसके भारी सलीब उस पर उठवाई, वो घुटनों के बल गिरता रहा, और कलवरी पहाड़ पर ले आए, और उसको जिन कोड़ों से मारा गया, वो कोड़े मैंने सुना है कि उस जमाने में जो कोड़े वो मारते थे, वो ना सिर्फ चमड़े के कोड़े ही थे, बल्कि उनके साथ लोहा, तांबा, पीतल और मरे हुए जानवरों की हड्डियां भी लगी होती थी, टुकड़े उसके। और जब वो जोर से मारते थे, जब जोर से कमर पर पड़ता था, तो वो गोश्त के अंदर घुस जाता था, और फिर वो छोटी छोटी हड्डियां और कांच के टुकड़े, और जब उसको खींचते थे तो वो इस तरह से पूरे बदन की बोटियां निकाल लाता था। और कलाम में लिखा, हलवाहों ने मेरी कमर पर रेखारियां बनाई, हलवाहों ने मेरी पीठ पर रेखारियां बना दी, गोया के जैसे हल चलाकर खेतों में लकीरें बन जाती हैं। यीशु मसीह की पीठ पर कोड़े मारे गए आपके और मेरे गुनाहों की वजह से। मैं अपने गुनाहों की वजह से शर्मिंदा हूं, क्योंकि मेरे गुनाहों की वजह से यीशु मसीह के मुंह पर शर्मिंदगी छा गई। वो अपने मां के बेटों में बेगाना हुआ। गुड फ्राइडे मैसेज भेज रहे, कुछ नहीं है। अगर हम कबूल नहीं करते, अगर हम तालीम को कबूल नहीं करते, अगर हम अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते, अगर हम मसीह मसलूब के दुखों को महसूस करते हुए उसके कदमों में हर रोज नहीं बैठते, देयर इज नो यूज फॉर गुड फ्राइडे, कोई फायदा नहीं है। और उसको कलवरी पहाड़ पर ले गए, जो खोपड़ी की शक्ल का है, जो आज भी सयाह वहां जाते पूरी दुनिया से सैरो सियाहत के सिलसिले में मसीही और गैर कौमें जाती हैं। और वो पहाड़ जो है, मैं सोचता हूं, वो पुकार कर बताता है कि हाँ, मैं ही वो पहाड़ हूं,
मेरा नाम ही कलवरी है जहां पर दुनिया का नजात दहिंदा मसलूब हुआ था। और मुझे कई अमेरिकन ने दिखाया, वो गोरों ने तस्वीरें, वो स्कल बना, खोपड़ी की शक्ल का बना हुआ, आंखें और मुंह और ढांचा है सर की तरह का, और उस पर लेकर गए। मैं ये समझता हूं, आप जरा इमेजिन करें कि खुदावंद यीशु मसीह की क्या कंडीशन होगी उस वक्त, कितना लागल, कितना कमजोर, क्योंकि वो पूरा बदन लेकर जमीन पर आया था। कोई ऐसा नहीं था कि कोड़े उस पर असर नहीं कर रहे थे, कोड़े लग रहे थे और खून भी निकल रहा था, मसामों में से खून निकल रहा था। और उसकी शक्ल शबात इसलिए बदल गई क्योंकि उसके मुंह पर तमाचे मार मार कर उसके मुंह पर स्वेलिंग हो गई थी, और उसके सर पर जो कांटों का ताज रखा था। हमारे पाकिस्तान में एक खादम आते थे डॉक्टर बहजत बतार से, उर्दन से, वो बताते हैं कि वो 3-3 इंच के लंबे कांटे हैं हमारे उस मुल्क में जहां पर यीशु को मसलूब किया गया था। उर्दन में और इसराइल में कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं, और उसने कहा वो इतनी सख्त होते हैं जैसे एक हार्ड टूथपिक होती है, इससे भी सख्त होते हैं। और उसने कहा कि जब उसको रख के वो दबाते थे तो वो हड्डी में तो जाता नहीं था, लेकिन स्किन के अंदर फिक्स होता था, यहां से यहां से यहां से। आप सोचें कि मसीहा के सर पर जो कांटों का ताज रखा गया, उसके जो नोक थी तेज, वो जब दिमाग के अंदर पेवस्त हो गई, फिक्स हो गई, तो उसका पॉइजन चढ़ा। उसने कहा वो पॉइजन वाले होते हैं कांटे, और उससे उसके चेहरे पे सोजिश हो गई। उसके हाथ और पांव उन्होंने कील से जड़ दिए, 9-9 इंच के लंबे कील, और उसके साथी छोड़कर भाग गए। आज हम यीशु के साथ दुखों में नहीं रहना चाहते, हम यीशु को इसलिए कबूल करना चाहते हैं कि हम सिर्फ सुख वाली जिंदगी हमें मिल जाए, सुखों में रहना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर यीशु मसीह के दुखों में शरीक होंगे तो फिर हम उसकी बादशाही में उसके साथ सुख में भी शरीक होंगे। अगर उसकी मौत में शामिल होंगे तो फिर उसकी जीवती जिंदगी में भी शामिल होंगे। और जब इतना कुछ करने के बाद उसके चोगे को खींचा और उसके बदन से कपड़े को उतारा, तो जो जख्म उसमें व्यवस्थ हो गए थे खून में, वो जब खिंचे तो फिर खून की नदियां बहने लगी। अभी हम गा रहे थे छलनी हो गया, वो छलनी हुआ, उसके सुराख बदन के जो हुए छलनी, वो गिनती नहीं कर सकता कोई उसकी, अनगिनत छलनी हो गया। पादरी इसके सरोज साहब ने लिखा ये कोड़ों की मार से। लेकिन मैं समझता हूं कि खुदावंद ही था जिसने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, खुदावंद ही था। हम तो छोटी सी बात किसी की बर्दाश्त नहीं करते। गुड फ्राइडे मैसेज है बर्दाश्त का। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा जब उसको सलीब पर चढ़ा दिया गया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने पहला ही जो कलमा कहा वो क्या था? ए बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ए बाप इन्हें माफ कर। ठहर जाए एक मिनट, गौर करें, माफी की दरखास्त कौन कर रहा है, कौन शिफायत कर रहा है? खुदावंद यीशु मसीह। और किन लोगों के लिए कर रहा है? जिन्होंने सारी रात उसको गालियां दी, उसके मुंह पर थूका, उसके बाल नोचे, उसकी दाढ़ी नोची, उसकी कमर पर कोड़े मारे। हमें कोई एक गिलास पानी पिलाने में देर कर दे तो हम सारी जिंदगी उससे बात नहीं करते, शर्म है, थू है हम पर। हमारा लीडर माफ कर रहा है दुख सहकर उन लोगों को जिन्होंने उसके हाथ और पांव छेद दिए। उसने कहा मेरी जान ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई, मैं अपनी हड्डियां गिन सकता हूं, मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई। और वो माफी की दरखास्त करता है। ये है पैगाम गुड फ्राइडे का। हमें कोई जरा सा उफ कर दे, हम सारी जिंदगी उससे बात नहीं करते हैं। हम वैसे ही कोई झगड़ा ना भी हो, हम कोई शख्स तरक्की करता, हम उससे नफरत करने लग जाते हैं। हम कहने लगे थे खुदा साहब लेगा तेरे को, तेनू खुदा पूछेगा। यार पूछेगा तो तेनू भी पूछेगा, तू कड़े रह जाना। माफ करने का पैगाम अगर हमारी जिंदगी में नहीं है, ये जज्बा, ये मादा नहीं है, नो यूज फॉर द गुड फ्राइडे। फिर कोई गुड फ्राइडे नहीं है। गुड फ्राइडे गुड जब होगा जब हम माफ करना शुरू कर देंगे। आमीन। आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। आज आप जहां पर बैठे हैं अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि कहीं आप किसी से नाराज हैं। किसने आपको सताया? आप ही को सताया होगा, आपने किसी को नहीं सताया होगा, लेकिन आप उसको माफ। यीशु मसीह ने तो किसी को नहीं सताया, लेकिन यीशु को जिन्होंने सताया यीशु मसीह ने उनको माफ कर दिया। आमीन। ये पैगाम है गुड फ्राइडे का। और दूसरा कलमा जो है, गुड फ्राइडे के दिन खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए हैं, हाथों पांव में कील ठुके हुए हैं, और सर पे कांटों का ताज है, और पूरे बदन से खून बह रहा है। और कलवरी के पहाड़ पर
خشک ہوائیں اس کے سر میں درد پیدا کر رہی ہیں، اس کی زبان خشک ہو چکی ہے، لیکن وہ خدمت کا کام پھر بھی کر رہا ہے۔ ہمارے سر میں درد ہو تو ہم چرچ نہیں آتے، لیکن خداوند کے سر میں کانٹوں کے تاج ٹھوکا ہوا ہے، انہوں نے ہاتھ سے دبایا ہوا ہے اور اس پر سرکنڈے مارتے تھے۔ اور ڈاکو سے خداوند یسوع مسیح نے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ کہاں پر ہوگا؟ گویا کہ ڈاکو ایک برا انسان، گناہوں سے بھرا ہوا، لوگوں کو لوٹنے والا، لوگوں کو زخمی کرنے والا، چرانے والا، مارنے والا، ہلاک کرنے والا، شاید کئی قتل بھی کیے ہوں اس نے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بغیر کچھ کیے ہی بچ گیا۔ یہی پیغام ہے گڈ فرائیڈے کا کہ اس پر ایمان لاؤ تو تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، تمہارے گناہ دھل جائیں گے۔ تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ یہ ہے پیغام گڈ فرائیڈے کا۔ گڈ فرائیڈے نام ہے نجات کا، نجات کا پیغام۔ گڈ فرائیڈے نام ہے معافی کا پیغام۔ ہاللیلویا! گڈ فرائیڈے، گڈ فرائیڈے۔ ڈاکو نے کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، ڈاکو نے سوچا، ڈاکو ساری بات چیت سن رہا تھا، اس نے جب دیکھا کہ یسوع نے پہلے ہی منہ کھولا تو لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیا، اس نے معافی کا، اس نے اپنے باپ سے درخواست کی، معافی کی۔ یہ سارا ماجرا دیکھنے کے بعد ڈاکو نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو خداوند تو مجھے یاد کرنا۔ بس اتنی بات ہی ہے، اتنا ہی کرنا ہے۔ آپ کو ڈیگے دینے سے گناہ نہیں دھلیں گے، آپ کے چڑھاوے چڑھانے سے گناہ نہیں دھلیں گے، آپ کے مرے ہوئے بزرگوں کی قبروں پر روٹی رکھنے سے گناہ نہیں دھلیں گے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کھیر ونڈن نال کچھ نہیں ہوئے گا، ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اس پر ایمان لانے سے، اس پر نظر کر، لے لے شفا، اپنے مسیحا سے لے لے شفا۔ کانفیڈنس، سب لوگ کہیں کانفیڈنس، کانفیڈنس، کانفیڈنس پیغام ہے گڈ فرائیڈے کا سالویشن کے بارے میں۔ کیا آپ کو کانفیڈنس ہے کہ آپ مرنے کے بعد آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے؟ ہاں، اگر آپ نے جیسے ڈاکو نے سمپل طریقے سے یسوع کو قبول کیا، اگر آپ نے یسوع کو قبول کیا تو آپ خدا کی بادشاہی میں ضرور جائیں گے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کیا بولا؟ اے عورت دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے۔ پھر شاگرد سے کہا دیکھ یہ تیری ماں ہے۔ پہلا کلمہ معافی کا، گڈ فرائیڈے معاف کرنے کا پیغام۔ دوسرا کلمہ نجات کا، گڈ فرائیڈے نجات کی، سالویشن کی، کانفیڈنس کی بات۔ گڈ فرائیڈے محبت کی بات، تابع داری، محبت، ماں باپ کا احترام۔ بہت سے بچے گڈ فرائیڈے پہ بڑا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھے ہوتے ہیں، ماں باپ سے جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ کے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، روزے پورے، جنہیں روزے انہیں دماغ گرم۔ غلط ہے، نو یوز، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے کہا اے عورت، اے خاتون، یہ تیرا بیٹا ہے، کیونکہ یسوع کو پتا ہے کہ اب سے تھوڑی دیر بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا، آسمان پر چلا جاؤں گا، اور میرے زمینی سفر، میری زمین کی خدمت پوری ہونے کو ہے۔ لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے اس عورت کے وسیلے سے جنم لیا، کیونکہ یہ ایک بیلنس تھا۔ جس عورت کے وسیلے سے لعنت آئی، عورت بڑی بدنام ہو گئی تھی۔ ہر کوئی کہتا تھا عورت کی وجہ سے ہم عدن سے نکالے گئے۔ ابھی تک لوگ کہتے ہیں کہیں اپنی بیویوں کو کہ تمہاری وجہ سے ہم نکلے۔ آپ اپنے آدمی کو بتا دیا کریں کہ عورت کے وسیلے سے یسوع بھی تو آیا ہے جس کی وجہ سے تو واپس آیا ہے، عورت کے وسیلے سے۔ یہ ایک بیلنس تھا، اور خداوند یسوع مسیح اس بات سے بخوبی واقف تھے۔ گڈ فرائیڈے پیغام ہے ماں باپ کی عزت کرنے کا، گڈ فرائیڈے پیغام ہے، یہ گڈ فرائیڈے کا پیغام ہے۔ پیارے بہنوں بھائیوں، اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں تاکہ آپ کا بھلا ہو۔ خود خالق بن انسان آ گیا، انسان بن کر آیا، اور زمینی زندگی میں جو اس کی ماں تھی عورت مقدسہ مریم، اس کی رسپیکٹ اور اس کی فکر اس کو برابر تھی، اور اس نے اپنی شاگرد کے سپرد کی۔ آمین۔ کیا آپ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو کرنا شروع کر دیں، ان کی خدمت کرنا شروع کر دیں تاکہ خداوند آپ کو برکت بخشے۔ ہاللیلویا۔ اور چوتھی جو بات صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے کہی، اوہ مائی گاڈ، لکھا ہے اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، ایلی ایلی لما شبقتنی، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ گڈ فرائیڈے پہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ بات کہ یسوع مسیح چھوڑ دیا گیا کیونکہ آپ کے گناہ اس پر آ گئے تھے، اور خدا کی آنکھ اتنی پاک ہے
कि वो बदी को देख नहीं सकती थी और खुदा ने उससे मुंह फेर लिया। और यीशु मसीह के लिए वो कोड़ों की मार इतनी खतरनाक नहीं थी, इतनी दर्दनाक नहीं थी। वो कीले ठोक देना हाथों पांव में इतना दुख देने वाला नहीं था। सर पर कांटों का ताज रख देना इतना दुख वाली बात नहीं थी। ये बात सबसे ज्यादा दुख वाली थी कि उसके बाप ने उससे निगाहें मोड़ ली थी। आज कलीसिया का बड़ा हिस्सा खुदा की नाराजगी और खुदा से दूरी में जिंदगी गुजार रहा है और कोई परेशान नहीं है। यीशु मसीह के बाप की जो दूरी थी उस वक्त वक्ती तौर पर वो हजारों सूलियों से ज्यादा खतरनाक थी उसके लिए। और उसने कहा, है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं अपने तौर पे सोचता हूं उसको फरिश्तों ने बताया होगा, उसको पाक रूह ने आवाज दी होगी। ये क्वेश्चन जब यीशु करे तो कैसे हो सकता है उसको जवाब ना मिले। हो सकता है उसको जवाब मिला हो, तो इसी कुर्बानी के लिए तू आया था दुनिया में और अब थोड़ी ही देर बाद तू बनी नौ इंसान का कफारा देने को है और फिर सारी नस्ल इंसानी की लानत जाती रहेगी। पुरानी चीजें जाती रही, देखो नई हो गई और सब पे गुनाह धुल गए और सब नए हो जाएंगे। हालेलुया। गुड फ्राइडे नाम है किसी के लिए रद्द किए जाने का, किसी के लिए दुख सहने का, किसी के लिए माफी की दुआ करने का, किसी को माफ करने का, मोहब्बत करने का, नजात के कॉन्फिडेंस रखने का। नजात का कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। याद रखिए, काहिन एक बर्रे को उस वक्त लेते थे और उसको बाहर जंगल में छोड़ आते थे और ये बर्रा जो है वो हर साल बार ऐसा करते थे। लेकिन प्यारी कलीसिया, खुशी मनाओ, शुक्र करो, खुदा की तारीफ करो कि अब ये जो बर्रा खुदा का है इसने कुल बनी इंसान के गुनाह उठाए हैं। हालेलुया। देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा लिया है। प्रेज़ गॉड। और सलीब पर खुदा ने क्या कहा, मैं प्यासा हूं, आई एम थर्स्टी। खुदा उनका गला सूख रहा है। ऐ मेरे चारा साज दूर न रहे, कुत्तों ने मुझे घेरा है, ज़ियाफ़तों के बदतमीज मस्करे मुझे घेरे हैं। मुझे जंगली सांडों से छुड़ा, वो मेरी पोशाक पर कुर्रा डालते हैं। मैं अपनी तमाम हड्डियां गिन सकता हूं। मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई और मेरी जान ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई। प्यास, सब लोग कहें प्यास। आपको पता है जब प्यास लगती है आप मीटिंग खराब कर देते हैं, लेकिन पानी जरूर पीते हैं। लेकिन याद रखिए, आपका और मेरा यीशु प्यासा हुआ। उसके बदन से खून और पानी निकल रहा था और उसका बदन तेजी से ड्राई हो रहा था। उसकी जान ठीकरे की मानिंद खुश्क हो रही थी। ठीकरे आपने देखे, जो मिट्टी के कोई भी बर्तन होते हैं उसके टुकड़े होते हैं, उसको ठीकरा कहते हैं। और उसको आप तोड़े तो खुश्क होता है बिल्कुल, क्योंकि वो भट्टी में तपाया गया होता है। आप गुड फ्राइडे पे याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने प्यास में कहा कि मैं प्यासा हूं। तो उन्होंने क्या उसको पेश किया था? ठंडा पानी। क्या पेश किया था? सिरका बिटरनेस, कड़वाहट को जाहिर करता है। जब आज खुदा हमसे कहता है मुझे पानी पिला, हम उसको नफरत का सिरका देने को तैयार रहते हैं। खुदावंद कहता है मेरे पास आ, हम उससे दूर भागने को तैयार रहते हैं। खुदावंद कहता है एक दूसरे से मोहब्बत रखो, हम उसके नाम से नफरत करना पसंद करते हैं। हम कहते हैं नहीं जी, कलाम में लिखा है ना हमवार जुए में ना जुतो। अपने आप को हमवार वाला जुआ कह लेते हैं और दूसरे को ना हमवार कह लेते हैं। याद रखिए, यीशु मसीह का खून हम सब के लिए बहाया गया है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे लिए दुख सहते हुए हमारे तमाम पाप उठा लिए। वो गीते गाते मेरे पाप यीशु के हिस्से में है। वो चलता है देखो सूली उठाई, उसने पापों का बोझ उठाया वॉलंटियरली। उसने गुनाह नहीं किया था। कायनात में एक ही पर्सनैलिटी है जिसने गुनाह नहीं किया, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए गुनाह बन गया। और गुड फ्राइडे पर एक और बात हुई। खुदा यीशु मसीह ने कहा, जब उसको सिरका लगाया गया उसके मुंह को, उसने पीना ना चाहा और उसने कहा तमाम हुआ, तमाम हुआ, इट इज फिनिश। ये कंप्लीशन जो काम खुदा करने आया था, नजात का काम तमाम हुआ। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। इस तमाम में आपकी सारी दुआओं का जवाब भी आ गए, आपकी सारी बातों का जवाब आ गया, आपके सारे सवालों का जवाब आ गया। तमाम हुआ, तमाम हो गया। जो काम मैं करने आया था मैंने पूरा कर दिया। जो नजात का पैगाम लेकर आया था मैंने पूरा कर दिया। जो जहान के गुनाह उठाने आया था मैंने उठा लिए। और मैं सलीब पर चढ़ने के लिए आया था। ये सब काम तमाम हुए। आपको रोजगार चाहिए,
सलीब पर खुदा ने आपको कह दिया तमाम हुआ, पूरा हो गया। आपको शफा चाहिए, सलीब पर कोड़े इसलिए मारे गए थे, उसके मार खाने से तुमने बीमार मत बने रहो। को भी इकरार भी करो कि हम शफा पा चुके हैं, हम तंदुरुस्त हैं, शुक्रगुजारी करना शुरू करें। और सलीब पर क्या हुआ, यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से पुकारा, फिर इसको 7वां कलमा जो हमारा है ये, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु मसीह ने कहा मुझे अपनी जान लेने का भी इख्तियार है और मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है, कोई मुझसे मेरी जान को छीन नहीं सकता। गुड फ्राइडे का पैगाम सुने जरा। ईमानदार की मौत ऐसी होनी चाहिए, खुशी खुशी कॉन्फिडेंस के साथ वो कहे कि अब मैं जाता हूं, मेरा जमीनी सफर पूरा हुआ, मैंने दौड़ को मुकम्मल कर लिया, मैं ईमान की कुश्ती लड़ चुका, हालेलुया, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर यीशु ने दम दे दिया और उसका काम उसने पूरा कर दिया। और जैसे ही उसने दम दिया, फौरन खुदावंद यीशु मसीह आलम रवा में उतर गया और आलम रवा में जाकर उसने क्या किया, उसने शैतान के उस अख्तियार को खत्म किया। और जो उससे पहले लोग उसके मुंतजर थे, उन सब जो मसीहा के इंतजार में हुए थे और वो खुदा के रास्तबाज लोग थे, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे, वो एक पोर्शन में रहते थे। और वहां से जाकर उसने उन तमाम लोगों को लिया और लिखा, वो आलम रवा में उतर गया और उसने वहां से कैदी रूहों को लिया और वो आलम बाला को सऊद कर गया, हालेलुया। ऐ प्यारी कलीसिया, खुशी मना, जब उसने दम दे दिया तो तेरा कफारा हो गया, तेरी जान की खलासी हो गई, तेरी जान की मखलसी हो गई, क्योंकि नजात दहिंदा तेरे और मेरे गुनाहों को उठा कर लिए जाता है, हालेलुया। और जब हमारे गुनाह माफ हो गए, जब उसने हमारे गुनाहों का कफारा दे दिया, तो ये शायद 44 बाब की 21-22 आयत में लिखा है, ऐ इस्राएल मैं तुझको फरामोश ना करूंगा, मैंने तेरी खताओं को घटा की मानिंद और तेरे गुनाहों को बादल की मानिंद मिटा डाला। मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, तेरे गुनाह मिट गए हैं, आपके गुनाह मिट गए हैं, आप पाक और साफ हो गए हैं। सिर्फ आपने ये करना है, उस पर ईमान लाके उसके पास आ जाना है। अगर आप आज भी इसके पास नहीं आते, आप गुनाह ही में रहते हैं, तो कोई भी फिर फायदा नहीं है। गुड फ्राइडे नहीं है, बल्कि ये बैड फ्राइडे है, ये बैड फ्राइडे, ये ब्लैक फ्राइडे, जैसे अमेरिका में एक मनाते हैं ब्लैक फ्राइडे, वो उसमें पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन ब्लैक फ्राइडे का मतलब है तारीख जुम्मा। ये जुम्मा जो है ये नूर की तालीम है, हालेलुया। ये जुम्मा जो है ये आज हमने कलाम पे गौर किया कि ये रिहाई, हमारे गुनाहों से रिहाई की बात है, हालेलुया। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, और फिर खुदावंद यीशु मसीह 3 रोज तक कब्र में रही उसकी बॉडी, और फिर तीसरे दिन जब वो मरियम मगदलीनी और वो औरतें जब खुशबूदार चीजें लेकर जा रही थी, तो उनको एक हैरान कुन खबर मिली। फरिश्ते ने कहा, तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हुई जा रही है? वो जी उठा है, वो जिंदा है और अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा। आपके लिए और मेरे लिए गुड फ्राइडे का पैगाम है कि यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन जी उठा, और अब फिर नहीं मरने का। और आखिरी पोर्शन बस अब ये रह गया कि वो बादलों पे आने वाला है। यीशु राजा बादलों पे जल्दी आएगा, अपने लोगों को वो अपने साथ ले जाएगा। मेरी दुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह, जितनों ने इस कलाम को आज आपने सुना है, आप सब उसके साथ उठाए जाएं पहली आमद में। अपनी आंखें बंद कर अपने सरों को झुकाएं। मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं गुनाहों से तौबा करने का। जो लोग हमें फेसबुक पे और यूट्यूब पे सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी ये मैसेज जा रहा है, खुदावंद यीशु मसीह ने डाकू से कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आप और मैं फिरदौस के हकदार बन सकते हैं अगर हम उसको कबूल करें, अपने गुनाहों से तौबा करें। सब आंखें बंद कर लें। सिर्फ मुझे वो लोग अपना हाथ दिखाएं जो लोग अपने गुनाहों से तौबा करना चाहते हैं। यस, छलनी हुआ आपके लिए और मेरे लिए। अपना हाथ ऊंचा दिखाइए। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको बरकत दे। गुनाह से तौबा करने के बाद तौबा के मुआफिक फल लाएं, हलीमी और आजिज़ी के साथ चले, उसकी हुजूरी में टाइम गुजारें। जितनों ने हाथ दिखाए हैं तौबा करने के लिए, गुनाहों की मुआफिक, ये बीमारों के लिए बात नहीं हो रही, जो गुनाह से तौबा कर रहे हैं, जिन्होंने हाथ दिखाए ऊंचा दिखाएं, ये लोग खड़े हो जाएं जिन्होंने हाथ दिखाए। सारी कलीसिया नहीं, जिन्होंने हाथ दिखाए, जिन्होंने तौबा करनी है। हालेलुया।
آپ ایک شارٹ پرے میں سب کریں گے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے, اپنے گناہوں پر پچھتائیں گے. سب اپنے آنکھیں بند کریں پلیز, کوئی کسی کو دیکھے, سب اپنے آنکھیں بند کریں اور میرے پیچھے پیچھے دعا کریں. پیارے یسوع, میں نے آج تیرا کلام سنا اور میں نے اقرار کیا کہ میں گناہ گار ہوں. میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں. میں نے آج تک تیری مرضی کے موافق کوئی کام نہیں کیا. اے یسوع مجھے معاف کر, میرے گناہوں کو اپنے خون سے دھو دے جیسے خدا تو نے ڈاکو کو معاف کیا. اے خدا مجھے معاف کر, مجھے اپنی بادشاہی میں قبول کر. میں جب تک زندہ رہوں تیرے لیے جیوں اور تو میرا ہاتھ تھام لے اور مجھے ہر ایک گناہ سے چھڑا لے. مجھے نیا جیون عطا کر یسوع کے نام سے. خدا میں تیرے پاک نام سے اس جماعت کے لیے دعا کرتا ہوں, اور جتنے لوگ ویڈیو ٹی وی پر اور فیس بک پر اور یوٹیوب پر اس میسج کو سننے کے بعد توبہ کر رہے ہیں, اے خدا ان سبوں کو تو سنبھال لے. ان کے ہاتھ تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں, اور جب تک تو نہ آئے یہ تیرا انتظار کرتے رہیں, تیرے منتظر رہیں اور تیری بادشاہی کے منتظر رہیں. اپنے بچوں کی حفاظت کرنا, شریر سے حفاظت کرنا, یسوع مسیح کے پاک نام کے وسیلے سے.